which we did only on, obviously I have uploaded a video of A and B, and I told you that C, yeah, we'll upload C as well. So now let's move to C. So in this question, yeah, this is the code version of 906 and happened on 28th October, right? So now in this problem you have been given a string similar to problem B. You want to make a string good, okay, similar to problem B, but the condition of good string is change, which is AI should not be equal to, A of k minus I minus 1. So basically the k is length. So basically they are saying that, okay, first character should not be equal to the last character. The second character from the first should not be equal to the second character from the last. So it should not be palindrome, but not only palindrome, but any such pairing should not be for all I. So they are just saying that, okay, any character I from starting should not be equal to any character j I from ending. So that's what you need to make sure, like, okay, 10 is fine, this is fine, this is fine, this one is not fine, this one is not fine, because they have same, they have, look, first is not equal to last, okay, you may know, but then there is zero in middle, that's not good for us, right? So what it suggests, basically, you will always be having something like even length, okay, always be having something like even length, because otherwise middle character will, yeah, will create some conflicts, right? So that's why these are not good. Now let's say ki how do we have to make it good? Operations can operation hai, it's a special like 0 1, okay. There are two characters which you are adding 0 1 at any position. So one thing to note is कि मैंने बोला कि even होना चाहिए, और जीवन 0 1 ऐड करने के बाद भी even ही होगा, because we are adding just two characters. So like the number of how many times you add 0 1 doesn't matter, that the new string s will always going to be even length. That is yeah, something important, but the major observation you have to think about it. First of all, let's see the test cases, okay. You have just given string, okay, pretty decent test case, but don't think about some fancy approach like DPVP. Not needed as such. Let me tell you why. Because you have just given a string, and what you can do is basically just have 0 1 and take it somewhere. So how does 0 1 help you? You have to understand that first. तो अगर कोई स्ट्रिंग है 0 0 0, क्या ये गुड बन सकती है? अभी क्या ये गुड है? अभी नहीं है गुड, ओके। गुड कैसे बन सकती है कि यार स्टार्टिंग में 0 है तो लास्ट में कुछ 1 आना चाहिए, ओके। या फिर लास्ट में 1 आना चाहिए, ठीक है। या अभी लास्ट में 0 है तो स्टार्टिंग में 1 आना चाहिए, बट मैं स्टार्टिंग में 1 कभी लाया नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज़ अभी नहीं है, और 0 1 ऐड करने के बाद भी 0 आएगा स्टार्टिंग पे, तो दैट्स नॉट अ गुड ऑपरेशन। तो हम स्टार्टिंग पे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 0 0 0 के लास्ट में जाके 0 1 लिख देंगे। सो माय फर्स्ट कैरेक्टर इज 0, लास्ट कैरेक्टर इज नाउ 1, so that's not different, that's different, so that's good for us. And then we have two zeros and basically three zeros consecutively. तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। हम 30 से स्टार्ट करा, हम 30 पे आ गए। लेट मी टेल यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। एंड after that I'll just come to the approach as well. That's not a observation based only. So I'm saying that you have 0 0 0. I'm saying that you cannot, you need something like, अगर यहाँ पे 1 हो जाता वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 0 1 है हमारे पास ऐड करने के लिए, तो मैं लास्ट में 0 1 ऐड करता हूँ। सो दिस इज द न्यू थिंग्स व्हिच आई हैव एडेड अप। 0 1 मैंने ऐड करा, तो मेरा 1 और 0 नॉन गुड फॉर अस ना। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट अब क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अब ये कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर इज इक्वल टू द सेकंड लास्ट कैरेक्टर, ये नहीं होना चाहिए। तो अगेन 0 0 वाली बात आई, मैंने कहा कि 0 1 डालो, यू नो बट तो कर सकते हो, बट इससे पहले जरा ये देख लो कि हुआ क्या। मेरा 0 और 1 मैच हो गया, ठीक है। मेरे पास शुरू में 3 जीरोस थे, ठीक है। और सॉरी यार 3 जीरोस थे ना हमारे पास, 3 जीरोस थे और हमने 0 1 ऐड करा है। तो हमने बस एक 0 1 ऐड करा है और 1 और 0 को इक्वल बना दिया है, और अब बचा क्या हमारे पास, इसको मैच कराना, मतलब इसको सेटिस्फाई कराना है। अगेन ये 3 0 है, सेम कंडीशन में सेम क्वेश्चन पे पहुंच गए, सेम चीज करेंगे दोबारा वही आ जाएगा, सेम चीज करेंगे दोबारा वही आ जाएगा। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी, व्हाई इट्स नॉट गोइंग टू बी, और कौन से केस में ये होगा। तो अब मैं ऑब्जर्वेशन रिवील करता हूँ। द मेजर ऑब्जर्वेशन इज नंबर ऑफ इवन ई, नंबर ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ 1। सो अगर ये नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सिंपल सी बात सोचो कि लास्ट में हमारी कोई स्ट्रिंग बन रही है, ठीक है। ये गुड कब होगी, जब इसका एक कैरेक्टर 0 होगा, लास्ट कैरेक्टर 1 होगा, फर्स्ट कैरेक्टर 0 है तो लास्ट कैरेक्टर 1 है, और इवन लेंथ है, ठीक है। तो हर एक 0 के कॉरस्पॉन्डिंग एक 1 है। अगर आगे 0 आ रहा है तो पीछे एक 1 आ रहा है, अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसके पीछे कहीं पे एक 0 आ रहा होगा, जो इसको, और बीच का भी पार्ट अपने आप में गुड होगा, ठीक है। बीच का पार्ट अपने आप में गुड है, 0 के 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 प्रेजेंट है, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 प्रेजेंट है, सो आर यू गेटिंग इट। तो आपका जो भी कैरेक्टर है, यहाँ पे आपके पास एक है, लेट्स से CH, तो लास्ट में आपके पास क्या होगा, 1 माइनस CH, ये होगा ही होगा।
तो हर कैरेक्टर के लिए आपके पास आई कैरेक्टर के लिए k माइनस आई, या फिर ये बोल लो हर आई कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग के लिए हर एक कैरेक्टर है जो कि आई एस कैरेक्टर लाइक कि या तो 0 और 1 लास्ट में इक्वल होंगे, और लास्ट में इक्वल होंगे, ये सब सबने मान लिया कि लास्ट में इक्वल होने चाहिए 0 1, ऑब्वियसली तभी मैं बोलूंगा कि गुड है कि एक जीरो हो, एक 0 1 0 1 0 1 आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और मतलब या दे आर प्रेजेंट फॉर ईच अदर, राइट। बट देन मैं ऐड क्या कर रहा हूँ, अभी तो देखो मैं एक जीरो और एक वन ऐड कर रहा हूँ, इक्वल नंबर ऑफ जीरोस ऐड होंगे, इक्वल नंबर ऑफ वंस ऐड होंगे। लेट्स सी मैंने 5 बार भी ऐड करा तो 5 जीरो ऐड होंगे, 5 वन भी ऐड होंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लास्ट में तुम्हें इक्वल 0 1 चाहिए, तुम जो ऐड कर रहे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज वो 0 और 1 की क्वांटिटी वो इक्वल रखेगा। तो इनिशियली जो तुम्हारे पास है उसकी क्वांटिटी 0 1 की इक्वल होनी चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस, नॉट मेजर अप। तो ये लास्ट में वी नीड नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, 0 equal to 1, and so it is basically only possible if current 0 is equal to current number of 0 should be equal to current number of 1। ये तभी होगा बिकॉज जो मैं ऐड कर रहा हूँ उससे कुछ 0 1 की रिलेटिव क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। या इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड यार, क्यों इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए, राइट। अभी हमने ये देख लिया कि हमें कुछ भी करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि 0 1 किस में बराबर है किस में नहीं है। तो ये गुड है, ये गुड नहीं है, ये गुड नहीं है। अब जब सेकंड ऑब्जर्वेशन ये आती है कि यार अच्छा जिसमें 0 1 इक्वल है उसमें आंसर हमेशा पॉसिबल होगा। दिस इज वेरी बिग थिंग इन इटसेल्फ, बट नॉट वेरी बिग थिंग बिकॉज आराम से देख सकते हैं, ठीक है। या सो जिसमें 0 1 इक्वल नहीं है तो पहले मुझे चेक कर दिया, और अदरवाइज पॉसिबल होगा, उसमें आंसर होगा एटलीस्ट कि तुम कुछ भी करके बना लोगे। जैसे कुछ भी लिख देता हूँ मैं, अब मैंने लिख दिया, मैंने 4 0 लिखे हैं, 1 and these are two zeros consecutively, then we have एक और जीरो, ठीक है। और मैंने 4 ही वन लिखे हैं, 1 0 1 0, और ये पूरा पैलिंड्रोम लग रहा है बिल्कुल मेरे को, राइट। इसको भी मैं गुड बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ, कैसे मेरे को 1 की जगह 0 डालना है ना, तो मैं आगे 0 1 ऐड कर दूंगा। आई डोंट नो बट आई एम जस्ट आई नो दैट कि बन जाएगा, कैसे बनेगा, लेट्स सी। 0 1, राइट। तो ये मैच हो गया। अब ये जो 1 है ये 0 से मैच हो जाएगा, ये जो 1 है ये लास्ट के 0 से मैच हो जाएगा। हो रहा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, ये 1 जो है 1 के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, रुक जाओ। तो 0 1 और 0 1 ये हमने कर दिया, ठीक है। एंड इन द एंड बेसिकली व्हाट वी वांट ना कि यहाँ पे कुछ x लिखा हुआ है, ठीक है, x लिखा हुआ है, मतलब 0 1 0 1 0 1 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारा बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट काइंड ऑफ थिंग्स लिखा हुआ है। तो ये 0 है, ठीक है, और समथिंग समथिंग समथिंग, और 1 1 है, ठीक है। अपोजिट मीन्स नॉट रिवर्स, बट 0 का कॉरस्पॉन्डिंग 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जीरोस, ये सब मेरे को चाहिए, ठीक है। और मैं ये कैसे डालूंगा, मेरे को जब भी डालना होता है जैसे 1 की जगह मैं ये देखता हूँ कि 1 1 है या क्या क्या है, तो मेरे को कहाँ पे क्या डालना है, ठीक है। या तो मैं स्टार्टिंग पे 0 1 डालूंगा, या मैं एंडिंग पे। ऑपरेशंस की बात करेंगे कि केवल स्टार्ट और एंड पे ही ऑपरेशंस हो रहे हैं, बट अभी हम किसकी बात कर रहे थे कि हाँ अगर इक्वल है तो हमेशा पॉसिबल होगा, ठीक है। तो 0 1 0 1 अभी ये आया, ये भी अगेन ये क्या बन गया, क्या बन गया ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 0 0 1, इसको कैसे सेटिस्फाई कराऊं मैं, 0 यहाँ पे ऐड करूं या आगे ऐड करूं, आगे ऐड करना पड़ेगा, राइट, ताकि 1 और 0 आपस में कैंसिल आउट हो जाए। तो अभी ये 1 0 नहीं, 0 1 1 0, एंड ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, डबल 0 1 और 0 1 1, और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। यू कैन क्लियरली ब्रेक डाउन ऑन दिस। तो 0 1 1 0 1 0 1 1 डबल 0, राइट, 0 डबल 1, उसके बाद ये 0, सो 0 डबल 1 0 और 1 डबल 0 1, तो बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल रिवर्स है, तो ये पॉसिबल हो गया, ठीक है, कुछ ऑपरेशंस करने के बाद। और एट मैक्स कितने ऑपरेशन लगेंगे तुम्हारे, एन ऑपरेशंस लगेंगे कि तुम्हें कितनी बार ऐड करना पड़ सकता है, ठीक है। ओके, अब कहाँ कहाँ ऐड करना है, कैसे ऐड करना है वो देख लो। तो सबसे पहली चीज़ तो आई थिंक जैसे ही तुम एल्स में आओ, मैंने सी आउट यस, अच्छा यस नो तो कराना ही नहीं है, तो तुम्हें जेड का साइज प्रिंट करना है और बस वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब ऑपरेशंस कैसे कर रहे हैं हम वो देख लेते हैं, ठीक है। ऑपरेशन कैसे कर रहे हैं, आई थिंक तुम समझ गए होंगे मैंने ऑपरेशन कैसे करा है, कि जो भी स्ट्रिंग गिवन थी मैंने देखा कि क्या 1 1 आ रहा है या फिर क्या 0 0 आ रहा है, मतलब देखो या तो ये 4 पॉसिबिलिटी है, राइट, 0 1 और 1 0। अगर 0 1 है 1 0 तो ये ऑलरेडी गुड है, हमें कुछ करना ही नहीं है। अगर 1 1 है 0 0 तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे 0 1 ऐड करने से कुछ फायदा होगा नहीं, होगा ना। तो हम आगे 0 1 ऐड करेंगे ताकि ये 0 और ये 1 एक दूसरे को आउट ऑफ कैंसिल आउट करें,
और होता क्या है कि एक 1 और आ जाता है। तो इसको देखने का नज़रिया ये है कि मेरा 1-1 था ना, तो 1-1 में क्या होता है कि आपने 0 ऐड करा, तो लास्ट का 1 हट गया। उसने आगे वाले 0 ने काउंटर कर दिया, बट 0 भी हट गया। तो ये बेसिकली ऐसे बन जाता है। तो एक्चुअल में क्या था सिनेरियो कि यहाँ पे मेरे पास 1 था, फिर कुछ भी था, ठीक है, 0, 0, 1, 0, 1 और एक 1 था। तो अब क्या हुआ कि जब मैंने यहाँ पे 0, 1 डाला, लास्ट का 1 हट गया और ये 0 हट गया काइंड ऑफ। तो ये लास्ट का 1 हट के यहाँ पे आ गया ऐसा सोच सकते हो, ठीक है? कि ये चीज़ तो ऑलरेडी थी। तो एक लास्ट का 1, तो बेसिकली पहले ऐसा था कि 0 है, 1 है, कुछ पड़ा हुआ है, फिर 1 है। तो इसको मैंने किस में ट्रांसफ़र कर दिया कि 1 है और फिर कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, बिकॉज़ वो 0 और 1 कैंसल आउट नहीं हुआ है, वो एक-दूसरे से मैच हो गए और हमने विंडो श्रिंक कर ली है बेसिकली। बट वो इंडेक्सेस तुम्हें रिटर्न कराने हैं ना, तो कैसे मैं सोच रहा हूँ कि कैंसल है, तो वो ये 0, ये जो 1 लिखा हुआ है, ये 0 इंडेक्स नहीं है, ये स्टिल 1 इंडेक्स है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ आया है इस, क्योंकि 0 ऐड 2 नंबर ऐड हुए हैं, 0 भी ऐड हुआ है, 1 भी ऐड हुआ है। तो ये बेसिकली सेकंड इंडेक्स बन चुका है नाउ, और ये फर्स्ट इंडेक्स है इफ यू टॉक अबाउट 0 इंडेक्सिंग, और 0 इंडेक्स पे 0 पड़ा हुआ है। और ये जो ओरिजिनल था ये अब सेकंड इंडेक्स पे शिफ्ट हो चुका है डायरेक्टली, क्योंकि पहले 0th इंडेक्स पे था, अब सेकंड इंडेक्स पे शिफ्ट हो गया, ये नया एलिमेंट आया फर्स्ट इंडेक्स पे। तो इंडेक्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट होगा ये कि 1-1 है तो ये ऐसे 1-1 ऐसे हो जाएगा, और 0-0 है तो बेसिकली वो कैसे हो जाता है कि 0 है और बीच में कुछ पड़ा हुआ है, तो इट शिफ्ट्स टू समथिंग लाइक 0, नहीं कुछ भी पड़ा हुआ है, लास्ट में 2 0 आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपकी इंडेक्सिंग आगे वाली कुछ नहीं खराब होगा, बट लास्ट में आपका 0-1 ऐड होगा, ठीक है? और लास्ट में आपका लास्ट में 0-1 ऐड होगा, यस, लास्ट में 0-1 ऐड होगा, और 1 वो आगे वाले 0 को कैंसल आउट कर देगा, काइंड ऑफ कैंसल आउट नहीं बट विंडो श्रिंक। तो हाँ, ये जो आई जे था, ये जे सेम इंडेक्स पे रहा, और ये जो जे था ये भी मतलब एक नया, बेसिकली हमारे जे आगे बढ़ गया, अब हमें इसको टैकल करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि हम इसी को टैकल करेंगे, अब हमें इस 0 को टैकल करना पड़ेगा। लाइक पहले हमने जहाँ पे जो 1 ऐड करा है, ये नया 1 है, ये पहले से 1 था। ये नया 1 ऐड हुआ है जो पीछे से उठ के आ गया है, तो इसको भी टैकल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यहाँ पे लास्ट में क्या है, 0 है, 1 है, उसके बेसिस पे। तो हमने आई को काइंड ऑफ माइनस माइनस नहीं करा, बट आई प्लस टू होना चाहिए था इस केस में, क्योंकि 0 से मैं सीधा सेकंड इंडेक्स पे 2 मैंने कैरेक्टर ऐड करे। मैं प्लस 2 नहीं करूँगा, बस प्लस 1 करूँगा, क्योंकि बस अब मेरे को ये एक जो नया कैरेक्टर है इसको भी देखना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो मैंने जे करा, तो जे तो बेसिकली मेरा शिफ्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैंने पीछे कुछ ऐड करा है, और बट अभी जो पीछे ऐड करा है उसमें से एक हट चुका है और एक बचा है, तो मेरे को जे को भी +1 करना पड़ेगा ताकि इस 0 को भी एड्रेस कर सकूँ मैं। थोड़ा-सा ये समझना, विजुअलाइज़ करना इज़ अ थिंग, बट हो यही रहा है कि आपका आगे और पीछे का कैरेक्टर देख रहे हो सेम है नहीं। 0-1 0-1 1-0 है, मतलब सेम नहीं है, तो बहुत आसान है, बस काइंड ऑफ तुम उसको शिफ्ट कर दो और आगे बढ़ जाओ। लाइक आई इंडेक्स आगे बढ़ा दो, जे इंडेक्स पीछे कर दो, ठीक है? आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, और ये किस लिए हेल्प कर रहे हैं हमारी आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, यू नो ये हमें इंडेक्स प्रिंट करना है भाई। एक्चुअली आंसर में तुम्हें नंबर ऑफ वो प्रिंट करना है कि कहाँ पे ऑपरेशन करना है, और कहाँ पे ऑपरेशन करना है एग्जैक्टली, वो प्रिंट वो भी करना पता करना है, ठीक है? एल पॉप बैक, एल फ्रंट, ये मेरे को हेल्प करता है आगे और पीछे वाला देखने के लिए। मैं बस आगे और पीछे वाला देख रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि यार ये कंप्लीट स्ट्रिंग है। मैं इंडेक्सेस के बेसिस पे भी कर सकता था, जिसमें मैं एल वेल का कुछ नहीं करता, मैं एक आगे से बढ़ाता एक पीछे से घटाता, और बट उसमें मेरे को आगे पीछे बहुत ज़्यादा वो हम इसमें एडिशंस करना आसान हो गया। डी क्यू है तो लिस्ट हमारा जो होता है डी क्यू होता है, पुश बैक, पॉप बैक, पुश फ्रंट, पॉप फ्रंट, ये सब ऑपरेशन में खूब सपोर्ट करता है, तो इसको इसलिए मेरे को सबसे ऑप्टिमल लगा सी प्लस प्लस के लिए। तो ये करा है भाई यहाँ पे मैंने, फिर आई को पुश बैक करा है, जे को पुश बैक करा है, ये हमारा रिजल्ट वेक्टर है कि यहाँ कौन से इंडेक्स पे मैं डाल रहा हूँ। तो कितनी बारी डालूंगा वो उसका साइज हो जाएगा, और कौन कौन से इंडेक्स पे डाला है वो मैंने इसमें स्टोर करा दिया, लास्ट में रिटर्न करा दिया। दिस इज सिंपल ऑब्जर्वेशन, बट ऑब्जर्वेशन बेस्ड ही था, और बट 2-3 ऑब्जर्वेशन आई थिंक पहली चीज़ जैसे तुम्हें क्लियर हो जाती है ना कि 0 और 1 इक्वल होने चाहिए, वो मेरे को थोड़ा ट्रिक करने में टाइम लगा। अगर वो ट्रिक हो गया तुम्हें, तो यू आर गुड टू गो। इफ यू थिंक कि वो ऑब्जर्वेशन तुम्हें आ गई थी बट स्टिल तुमसे क्वेश्चन नहीं बना, तो इट्स मोर और लेस कि थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, बट ऑब्जर्वेशन एक ही थी कि 0-1 इक्वल होने चाहिए, नहीं होंगे तो पहले ही आंसर फॉल्स हो जाएगा। अगर इक्वल है तो कि बस तुम्हें ये देखना है कि कहाँ-कहाँ पे ऐड करना है, जो कि विजुअलाइज़ मतलब इक्वल है तो आंसर हमेशा पॉसिबल होगा, पहली बात तो ये बोलना, ठीक है? तो ये वहीं से आता है कि 0-1 इक्वल है तो आंसर पॉसिबल होगा ऑब्वियसली, ठीक है? एंड देन उसके बाद आंसर को सिमुलेट करना, इट्स जस्ट सिमुलेशन, कि करना क्या है कि कहाँ पे 0-1 ऐड करना है, कहाँ पे आगे ऐड करना है, पीछे ऐड करना है, और किस इंडेक्स पे जाके ऐड करना है। बट हम जा करके तो इंडेक्स पे आ रहे हैं ऐड, बट हम ऐसे देख रहे हैं कि या तो आगे और पीछे, क्योंकि जब हम 0-0 एक सेटिस्फाई करा देते हैं कि
नहीं, फ्रंट और बैक सैटिस्फाई करा देते कि पहला और पीछे वाला डिफरेंट है, तो मैं उसको काइंड ऑफ श्रिंक कर देता हूँ विंडो को और हम बस बीच वाले पार्ट पे फोकस करते हैं, राइट? बट एक्चुअल में तो तुम्हें उसका इंडेक्स चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि अभी मैं बीच वाले पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ तो ये इंडेक्स 0 है। नहीं, इंडेक्स तो इसका 1 ही है, तो उसके लिए हमें ये आई-जे वाला खेल करना पड़ रहा है कि पॉइंटर्स तुम्हारे सही इंडेक्स पे पॉइंट कर रहे हैं और मैं वही वाला इंडेक्स पुश कर रहा हूँ जो मेरे को करना चाहिए। दिस इज़ इट। ओके गाइस, थैंक यू, बाय। देखते हैं थोड़ी देर में आगे।